हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो पुट द हेडिंग यू ऑल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप लिख सकते हैं HC+OH। कीटोन को ऐसा लिख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C+O कार्बोनिल ग्रुप। But in aldehyde there are hydrogen atoms attached with the functional group of carbonyl group. But in case of ketone there is no hydrogen atoms attached with the functional group of carbonyl. That's why the oxidation of aldehyde is easier in the respect of ketone due to the absence of hydrogen which are directly attached to the functional group of carbonyl group. So aldehyde can be oxidized very easily while ketone cannot be oxidized easily. In this way we can say that aldehyde can be oxidized very easily. It means this can be oxidized by using either mild oxidizing agent or a strong oxidizing agent. इससे ये पता चला कि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली जो कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है, इसके कारण इसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। लेकिन कीटोन में इस तरह के कोई हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जिसके कारण कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर करके आप उसे ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ओनली यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ओनली यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, while aldehyde can be oxidized by using weak oxidizing agent as well as a strong oxidizing agent. आप ये जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी का ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो वह कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो काफ़ी आसान है, इसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hydrogen atoms which is directly attached to carbonyl group in aldehyde, its oxidation is easier, but it cannot be oxidized easier. Next, aldehyde can be oxidized. It can be oxidized by using weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent weak oxidizing agents like bromine water. Second, Tollens reagent. Third one is Fehling solution. So these are the weak oxidizing agent. Other is also Benedict solution. So this can be oxidized by using weak oxidizing agent as well as a strong oxidizing agent. So these are the weak oxidizing agent. A strong oxidizing agent, Conc HNO3. Sixth, KMnO4 acidic. Next 7, K2CR2O7 in acetic immediate.
So it can be oxidized either we use a weak oxidizing agent or a strong oxidizing agent into their corresponding carboxylic acid. इसकी रिएक्शंस को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग ले लीजिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो प्रॉब्लम, it get oxidized in carboxylic acid. Name of this one is formic acid. Next, if we take acetaldehyde instead of formaldehyde, it get also oxidized in corresponding carboxylic acid. Its name would be acetic acid. Acetic acid. So after using any one of oxidizing agent, either weak oxidizing agent or a strong oxidizing agent, aldehyde can be oxidized into corresponding carboxylic acid. Now we see oxidation of ketone. Ketone can be oxidized by using a strong oxidizing agent like KMnO4, acidic, K2Cr2O7 or K2Cr2O7 acidic or CONC-HNO3. By using all these oxidizing agents, since these are a strong oxidizing agent, so it get oxidized with the breaking of carbon-carbon bond. So now when it is, this bond will break, both side carboxylic acid is formed. So one is, एक यदि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो एक साइड में कितने, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड CH3COOH, राइट, प्लस इधर का एक है तो एक कार्बन का एसिड, नेम ऑफ दिस एसिड इज फॉर्मिक एसिड. सो आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कीटोन, two acid is formed. One is acetic acid, other is formic acid. So this ketone is symmetrical. यदि अभी तो सिमेट्रिकल कीटोन के कंडीशंस में ऐसा हुआ, यदि ये कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, जैसे देखो ये ऐसा हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है KMnO4 और एसिडिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड होता है विद द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड which are present in between the functional group of carbonyl carbon and the carbon of alkyl group. तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है. अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल कीटोन थे, तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, सिमिलर प्रोडक्ट मिलता और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे. लेकिन यहाँ पर यह बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता, इस बॉन्ड को भी हम ब्रेक कर सकते हैं. तो चलिए दोनों बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बारी बारी से. यदि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये साइड में 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एसिड CH3, मैं एक ही बार लिख देता इसको, C2H5 COOH प्रोपेनोइक एसिड, और इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन का एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड HCOOH. यदि ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ठीक है. इफ द ब्रेकिंग ऑफ
this bond means A, I have represented A will break, then propanoic acid and formic acid is formed. Next, अब जब यहाँ आप देखो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है, बी वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो ये क्या बनेगी, तो ये वाली ए को ब्रेक होने के बाद बना है। जब बी वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो आप देखिए इधर से कितने, दो, इधर से कितने, दो, यानी CH3 COOH। इसको थोड़ा और भी मैं डिफरेंट कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, एक और इसमें बढ़ा देता हूँ। चलो यहाँ ही रहने दो। यहाँ ये इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और ये क्या होगा, जब बॉन्ड बी ब्रेक किए तो ये बना प्लस एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, यदि ये ऐसा हो, ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए KMnO4 एसिड। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए, 1 2 3 4, वन साइड में 4 कार्बन यानी C3H7 COOH। इस साइड में कितने, एक कार्बन यानी फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आप यदि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 3 और 2 यानी कि प्रोपेनोइक एसिड C2H5 COOH प्लस CH3 COOH, ये दो प्रोडक्ट बन गए। एक इस बॉन्ड को ब्रेक करने से, दूसरा इस बॉन्ड को ब्रेक करने से। यहाँ अभी इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो दिस टू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड A एंड दिस वन इज फॉर्म्ड विद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड B। अब यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स मिल गए, तो अब यहाँ पर एक बात होती है कि क्या ये दोनों किसी भी रिएक्शंस को आप कराते हैं, यदि हमारे कीटोन अनसिमेट्रिकल होते हैं तो क्या आप हमेशा ऑल 4 प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे? नहीं, ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। एक होते हैं उसके लिए कौन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उसके लिए एक रूल्स है, पोपॉफ्स रूल, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पोपॉफ्स रूल। अब ये इस बात को बताएगा कि जब हमारा कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो जब सिमेट्रिकल हो तो कौन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो ये पोपॉफ्स रूल बताते हैं द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड द कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, which one bond will break during the oxidation of ketone। तो इसने कहा कि only that bond will break between the carbon of the carbonyl group and carbon of the a smaller alkyl group, and this product is major product. This product would be major product और वो जो प्रोडक्ट होंगे वो मेजर होंगे, राइट। अभी जैसे और भी मैं सिमेट्रिकल लेता हूँ, जैसे और भी ले लेते हैं C5H11 C double bond O C2H5। नाउ सी दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन और इसे हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 एसिडिक ले लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल
which carbon bond will break? Carbon atom which is present in a carbonyl group यहाँ है, और कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप, कौन से अल्काइल ग्रुप? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो ये इथाइल है, ये पेंटाइल है, ये स्मॉलर है, तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। अब एक साइड में 5x6 कर लो, तो C5H11 COOH प्लस C2 C3 C दो ही है ना, हाँ, तो CS3 COOH। दिस वुड बी मेजर प्रोडक्ट। यदि आपसे, और इसी को लिखना है, मेजर प्रोडक्ट को ही लिखा जाता है। यदि पूछा नहीं गया आपको कि आप मेजर लिखिए या माइनर लिखिए, तो हमेशा आपको इसी प्रोडक्ट को लिखना होगा। यदि आपसे पूछा जाए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तब आप इसको ये मेजर लिखेंगे और दूसरे कंडीशंस में आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो माइनर हो जाएंगे। यहाँ 5 है, यानी कि C4H9 COOH और प्लस ये साइड में 2 और 3, यानी कि C2H5 COOH। दिस प्रोडक्ट वुड बी माइनर। So in this way we can oxidize aldehyde as well as ketone using weak oxidizing agent. Aldehyde can be oxidized using weak oxidizing agent as well as a strong oxidizing agent, but ketone only using a strong oxidizing agent. Now we see oxidation using Tollens reagent. Tollens reagent. Tollens reagent. Tollens reagent. At first we understand ये Tollens reagent क्या होता है? What do you mean by Tollens reagent? Ammonical solution of silver nitrate is said to be Tollens reagent. जैसे अमोनिकल सॉल्यूशन, तो अमोनिकल सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं इसमें NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके बनाते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इसका पीपीटी मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके पीपीटी में इसको फिल्टर करके हम लोग निकालते हैं। अब ये क्या होते हैं कि AgOH हीट करने के बाद ये ब्रेक हो जाते हैं Ag2O में और प्लस H2O में बाहर आ जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शंस होंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं NH4OH प्लस AgNO3 और नेक्स्ट Ag2O प्लस NH4OH NH4NO3 प्लस H2O। कंप्लीट रिएक्शंस को आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ ये 2 सिल्वर है, तो यहाँ पर 2 आप कर लीजिए, ये 2 होंगे तो यहाँ 2 कर लीजिए, तो NH4OH भी 2 हो गए, आपको 2 NH4 हो गए और यहाँ हो गए। अब यहाँ देख लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, तो NH4 तो 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन OH थे तो H2O, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 H2O, ये बैलेंस हो गया। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड मिला, यानी कि जो आपका ये तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इस टॉलरेंस रिएजेंट हो गया। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से ये सिल्वर ऑक्साइड मिले, यानी टॉलरेंस रिएजेंट में प्रेजेंट होंगे, सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। तो जब इस टॉलरेंस रिएजेंट को एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लोली विद द बॉल ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, उसमें धीरे धीरे हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट ड्रॉप वाइज उसको डालते हैं। तो उसके जो दोनों की जो कांटेक्ट पॉइंट होती है, वहाँ पर एक सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है और एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस। अब जैसे मान लेते हैं आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं HCHO और इसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट को डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट,
तो टॉलेंस रिएजेंट है क्या भाई, Ag2O। तो ये क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये किस में रिड्यूस्ड हो गए, सिल्वर में। तो ये जो सिल्वर में रिड्यूस्ड हो जाते हैं, तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने टॉलेंस रिएजेंट को ऐड किया एल्डिहाइड लेकर करके, तो उसके वाल पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। दिस सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब के वाल पर डिपॉजिट होने के कारण क्या हो जाते हैं, वो इतने उस पर लाइट जब पड़ती है उस सिल्वर के सरफेस पे, तो वो मिरर के जैसा साइन करता है। तो ड्यू टू शाइनिंग लाइक अ मिरर, this test so this is silver sign, or this test is called silver mirror test. So this one is called silver mirror test, and this test is used to test the presence of aldehyde group in any organic compounds, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, टू टेस्ट इट, इसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द टॉलेंस रिएजेंट। यदि वो कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यदि वो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहे हैं, तो कंफर्म होगा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट इज अ weak oxidizing agent, or a ketone is not oxidized by the weak oxidizing agent, only aldehyde is oxidized. Aldehyde is oxidized by Tollens reagent, so it is used to test the presence of aldehyde group in any organic compounds, right? So in this way we all have studied about the Tollens reagent, ठीक है, और किस तरह से ये रिएक्शंस करते हैं, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड में। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या कीटोन देगा, नहीं देगा। इसका मतलब इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, we must have to react it with the tolerance reagent or weak oxidizing agent, because with the help of weak oxidizing agent aldehyde get oxidized into corresponding carboxylic acid, but ketone doesn't. So by using Tollens reagent we can differentiate difference between aldehyde and ketone, और हम लोग ऐसा कर सकते कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जबकि कीटोन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।